Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and have a great day. So now today our topic is basic operations on algebraic fraction. So before starting this topic or the exercise questions, what we need to know is, okay, now do you know what is mean by fraction? Whenever we have a term in which numerator and denominator involve, we known as a fraction. And what is mean by the algebraic fraction then? So it means then whenever we have a algebraic expression involve in a fraction, means algebraic expression आपके पास आ जाएगा numerator में भी और कोई उसका पार्ट डिनोमिनेटर में भी आ जाए, तो बेसिकली वो आपके पास क्या बन जाता है, एल्जेब्रिक फ्रैक्शन बन जाता है. ठीक है. सो आई हैव रिटन द फ्यू एग्जांपल्स दैट व्हेनेवर वी हैव दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि जिसमें हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएं, ठीक है, विद पॉजिटिव नेगेटिव साइन, वो आपके पास क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक फ्रैक्शन. क्लियर हो गई बात. Now afterward we have few types of it. Multiplication of algebraic fraction. हमारे पास algebraic fraction में multiplication किस तरीके से होती है और क्या rules होते हैं basically. Let's suppose आपने यहाँ पे एक suppose किया कि r upon t and s upon 2 u are two algebraic fraction. ये basically आपके पास दो algebraic fraction givens है. ये सिर्फ suppose कर रहे हैं. अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा. बेसिक जो चीज़ है यहाँ पे बताने के लिए, बेसिक जो पॉइंट है यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए, वो ये है दैट द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो. कीप दिस इन योर माइंड व्हेनेवर वी आर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन, आइदर इन नॉर्मल फ्रैक्शन मीन्स अर्थमेटिक फ्रैक्शंस और इन अलजेब्रिक फ्रैक्शंस. द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो बिकॉज व्हेनेवर द डिनोमिनेटर विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो इट विल गोज टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी मीन्स in other words, in easy words we say that it will give you math error बेसिकली. सो मैथ एरर जब भी देगा तो वो आगे सॉल्व ही नहीं हो सकेगा, हमें उसको वहीं स्टॉप करना होगा. क्लियर हो गई बात. और वो आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता. तो दैट मीन्स वेन एवर वी हैव algebraic fraction in the multiplication, we are doing multiplication in algebraic fraction, we will write it in this way. यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट भी हो सकते हैं. अगर कोई चीज़ उसके अंदर सेम होगी तो हम उसको कैंसिल आउट करके उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में करके हम उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी मेंशन करेंगे. क्लियर हो गई बात. नाउ वी हैव अ डिवीजन ऑफ algebraic fraction. Now as you know that whenever we are doing the arithmetic fraction division, so what is the one thing we do is whenever we have a division sign, and when we change the division sign into multiplication sign, the next fraction will got reciprocal. Okay, the same rule will be follow for the algebraic fraction, division of algebraic fraction as well, and the same thing that the denominator will not be equals to 0. Afterwards we have addition and subtraction of algebraic fraction. Now in normal arithmetic fraction, whenever we have addition and subtraction in fraction, what we do, we used to same the denominator. हम denominator को क्या करते थे, same करते थे by using a LCM. यही होता था. सेम मैथडोलॉजी हम algebraic फ्रैक्शन में भी यूज़ करेंगे कि जब हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन आएगा तो हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, देन वी विल सॉल्व इट फर्दर. Now what we mean by combined operation on all algebraic fraction, combined operation on algebraic fraction means whenever there is a question in which addition, subtraction, multiplication, division, all these things will be involved or either two pair will be involved, we are going to use the Demas rule use करेंगे. Is this thing clear? Now this is the thing what we are going to use in exercise 4.6. Now let's continue with the question. Now let's see, we have question number 2. We will do question number 1 as well. Let's do the question number 2 first. Question number 2. In question number 2 what they are saying that these are the two algebraic fractions and it involves the multiplication as well. So what we are going to do, we will write the solution, we will do the multiplication, but फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी हैव टू टेक आउट द कॉमन. जो चीज़ें कॉमन होंगी वो हम बाहर लिखेंगे. ठीक है. और अगर कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा होगा तो वो फार्मूला भी अप्लाई कर देंगे. देख लेते हैं क्या होता है. अब आप यहाँ देखो कि हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 7x कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास बच जाएगा 2x - 1 डिवाइड में आ जाते हैं. यहाँ मेरे पास आ जाएगा 12x² कॉमन, तो इट विल बी x +
2, okay, because 12 2 24, ये हो गया. Then we have x again common, x plus 2, oh that will be a multiply. Then we have 2x plus 1. Okay, now what we are going to do is, let me see what I have done. Okay, I have done one thing wrong in it, that's it's a negative 1. So whenever it will be -1, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. अच्छा, मल्टीप्लाई की वजह से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस कैंसिलेशन भी कर सकते हैं और अप एंड डाउन कैंसिलेशन भी कर सकते हैं. अब आप ये देखो यहाँ से क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं. 2x माइनस 1, ये 2x माइनस 1 से कैंसिल हो गया. x प्लस 2 से कैंसिल हो गया. इज़ दिस थिंग क्लियर? अब आप ये देखें, ये मेरे पास एक x है, ये मेरे पास दूसरा x है. ये दोनों x मिलके क्या हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाते हैं. तो ये पूरा एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देते. दैट्स इट. अब आप देखो क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो गई, तमाम चीज़ें कैंसिल हो गई और मेरे पास क्या रिमेनिंग है, 7/12. इज़ दिस थिंग क्लियर? सो दिस विल बी आवर आंसर. Now let's move towards another question, that is question number 3. 3 नहीं 4. 3 will be your homework. हम 3 बहुत easy है. आप जब 3 इसको सॉल्व करोगे तो आप easily सॉल्व कर लोगे. Let's see the book. Question number 3. देखिए, सिंपल क्या करेंगे आप, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे. उसके बाद सिर्फ हम कैंसिलेशन करेंगे ड्यू टू दिस मल्टीप्लिकेशन साइन. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 4. Now what they are saying in question number 4, a minus b, a square plus ab, then multiply sign, a to the power 4 minus b to the power 4 डिवाइड में आ गया, a square minus 2ab plus b square multiply by a over a square plus b square. अब पहली चीज़ जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जब भी हमारे पास पॉजिटिव साइन आता है और दोनों टर्म्स स्क्वायर में होती हैं तो हम उसके ऊपर कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो तो एज इट इज़ आ जाता है. बट जब भी हमारे पास फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो और सेंटर में नेगेटिव साइन हो, तो हम इजीली, हमारे पास एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ओपन होके हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. हम क्या करते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा ही है. चलें जी, सबसे पहले a माइनस बी एज इट इज़ आ गया. इन दोनों टर्म्स में से वी हैव टेकन आउट a एज कॉमन, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, a प्लस बी. मल्टीप्लाई साइन एज इट इज़, a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 विल बी ओपन इन ऑन एट a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टू द स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर एक फार्मूला होता है जो कि क्लोज हो जाता है a माइनस बी होल स्क्वायर पे. सो व्हाट आई डिड इट हेयर इज़, मैंने इसको डायरेक्टली क्लोज कर दिया a माइनस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय a अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया. क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ें. आगे बढ़ने के बाद अगर कोई कहे नहीं मैं इसी पॉइंट पे कैंसिल आउट हम कर सकते हैं, जी बिल्कुल, इस पॉइंट पे भी जो जो चीज़ें आपको सेम आ रही हैं आप वो कैंसिल आउट कर दो. मैंने नेक्स्ट वाले पॉइंट पे किया है. अब ये देखिए, फर्स्ट टाइम एज इट इज़ कॉपी कर ली, मल्टीप्लाई साइन एज इट इज़ कॉपी कर लिया. यहाँ पे क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी ओपन एट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर की टर्म है a माइनस बी होल स्क्वायर एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय a ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट विद दिस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिकॉज ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन साइन दिस a विल कैंसिल आउट दिस वन. क्लियर हो गई बात? a माइनस बी विल कैंसिल आउट द वन पावर ऑफ व्हाट, a माइनस बी का होल स्क्वायर. आफ्टरवर्ड 1 ओवर a प्लस बी एज इट इज़, मल्टीप्लाई साइन एज इट इज़. अब आप ये देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी ओपन इट एट a प्लस बी इंटू a माइनस बी, डायरेक्टली लिखा हमने, और हमारे पास डिनोमिनेटर में रिमेनिंग था a माइनस बी, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया. अब सिंपली आप देखो, a माइनस बी a प्लस बी कैंसिल आउट हो गए, 1 1 1 मल्टीप्लाई गिव्स यू व्हाट, 1. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ ऑल्सो योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली आपने क्या करना है, डिवीजन साइन गिवन है. सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. रेसिप्रोकल करेंगे, यहाँ आपके पास फार्मूला अप्लाई होगा. फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो जो चीज़ें कैंसिल आउट होंगी वो आप कैंसिल आउट करेंगे और सिंप्लीफाइड वर्जन में आंसर लिखेंगे. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. Now in question number 6, as you can see, we have 8a cube
-1 डिवाइडेड बाय 4a³ प्लस 2a² डिवाइड साइन, 6a² माइनस 13a प्लस 5 डिवाइडेड बाय 15a माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 2a टू द पावर 4 प्लस a³ डिवाइडेड बाय 15a². नाउ दिस इज अ कंबाइन ऑपरेशन. इन दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व इट बाय यूजिंग द डीमास रूल. बट डीमास रूल अप्लाई करने से पहले जब हम ऑब्वियसली जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारे पास जो सेंटर वाला जो ये सेंटर वाली जो टर्म है बेसिकली ये क्या हो जाएगी, ये रेसिप्रोकल हो जाएगी. तो खुद ब खुद दोनों जो टर्म्स हैं बेसिकली दोनों फ्रैक्शंस हैं वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे. Is this thing clear? Now let's solve this. Now as you can see that it is a perfect 8 is a perfect cube. Okay. So what we are going to do is we need to apply the formula that is a³ minus b³ which will gives us a minus b a² plus ab plus b². Afterwards now we are going to 2a to the cube minus 1 का क्यूब, ये हमने इसको ब्रेक डाउन किया, डिवाइड बाय यहाँ से हमने 2a² कॉमन निकाला तो हमारे पास रिमेनिंग बचा 2a plus 1. डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, ये रेसिप्रोकल हो गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला गया. मल्टीप्लाई बाय यहाँ से हमने कॉमन निकाला a³, ठीक है, और तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा 2a plus 1 और डिवाइड में मेरे पास आ रहा था 15a². ये जो a² है ये a³ को जब कैंसिल आउट करेगा तो बेसिकली कितना बचेगा मेरे पास a टू द पावर 1 यानी कि सिंपल a. आगे बढ़ते हैं. ये मेरे पास जब q की फार्मूला अप्लाई हुआ तो सबसे पहले ये हो गया 2a minus 1 देन a² यानी कि 2a का स्क्वायर प्लस ab. तो ये 2a इंटू 1 गिव्स यू सिंपली 2a प्लस 1 का स्क्वायर गिव्स यू 1. डिवाइड में मेरे पास 2a², उसके बाद आ गया 2a plus 1. आफ्टरवर्ड्स इसमें यहाँ से हमने कॉमन निकाला 5 तो ये हो गया 5 3 15 5 5 25 नेगेटिव साइन एज इट इज़. इसको ब्रेक डाउन किया 6 5 30 30a² को हमने ब्रेक डाउन किया 10 मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ नेगेटिव साइन हमें चाहिए तो बेसिकली माइनस माइनस गिव्स यू व्हाट प्लस, ठीक है. और जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बेसिकली प्लस का 30 होगा और जब इसके ऊपर सिंपल नेगेटिव ऑपरेशन अप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बड़े नंबर के साइन के साथ ये 13a आ जाएगा. ओके नाउ आफ्टरवर्ड लास्ट में मेरे पास क्या रिमेनिंग बचा था, a बचा था, ये हो गया 2a plus 1 और डिवाइड में मेरे पास 15 आ गया था. ये वाला जो a है बेसिकली कैंसिल आउट होगा किससे, ये वाले a² से. तो यहाँ पे कितनी पावर हमारे पास रिमेनिंग होगी, अगेन 1 रिमेनिंग हो जाएगी. 5 1 5 5 3 15 बाकी चीज़ें एज इट इज़ हमने कॉपी कर ली, ठीक है. 2a minus 1 4a² प्लस 2a plus 1 डिवाइड में मेरे पास सिंपल 2a हो गया बिकॉज ये 2a plus 1 और ये 2a plus 1 भी कैंसिल आउट हो गया था ना, इसलिए मेरे पास डिवाइड में 2a यहाँ पे रिमेनिंग रहा. मल्टीप्लाई बाय 3a minus 5 यहाँ से हमने जब कॉमन निकाला तो मेरे पास हो गया 2a 3a minus 5 यहाँ से -1 कॉमन निकला तो ये हो गया 3a minus 5. अब ये जो चीज़ होगी हम इसको एक दफ़ा लिख देंगे और 2a minus 1 को एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे. यू कैन सी इन द नेक्स्ट पेज. देखिए यहाँ पे हमने उसको एक ब्रैकेट में क्लोज किया. अब जो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही थी वो कैंसिल आउट करी. कैंसिल आउट करने के बाद जो रिमेनिंग बचा है मेरे पास वो हुआ 4a² प्लस 2a plus 1 और डिवाइड में मेरे पास यहाँ 3 है और यहाँ 2 है तो ये बेसिकली कंबाइन होकर मेरे पास क्या हो गया 6a हो गया. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7. कीप दिस इन योर माइंड. क्वेश्चन नंबर इन 7 अगेन वी हैव द कंबाइन ऑपरेशन द कंबाइन ऑपरेशन और कंबाइन ऑपरेशन में मेरे पास डिवीजन साइन आ रहा है. डिवीजन साइन किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई साइन में, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. क्लियर हो गई बात. यहाँ देखिए a² माइनस b² की फार्मूला अप्लाई होगा तो वो जो कि ओपन हो जाएगा a² माइनस b² गिव्स यू व्हाट a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है. आफ्टरवर्ड यहाँ पे मैंने मिडिल टर्म ब्रेकिंग करी है. 9x² हो जाएगा. फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x². 8 9 72 माइनस 8 सॉरी 9 1 9 नीचे वाला 72 है. 9 1 9, ठीक है. 9 1 9 करने के बाद मुझे नेगेटिव साइन चाहिए तो मैंने -9 के साथ यूज़ करा और 1 के साथ पॉजिटिव साइन यूज़ करा है तो मुझे मेरे रिक्वायर्ड जो है -8 वो ईज़िली यहाँ से मिल जाएगा. -9 एज इट इज़. नीचे मेरे पास जो है वो है डिनोमिनेटर में -72x² यहाँ पे होगा 8 9 72 और जब इसको हम प्लस करेंगे तो ये हमें 17 देगा. बट हमें नेगेटिव का 17 चाहिए. इट मीन्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. नेगेटिव साइन यूज़ करा है यहाँ पे दोनों जगह ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई किया है. मल्टीप्लाई साइन चेंज करके इसको रेसिप्रोकल किया और इसमें भी हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेकिंग ही होगी.
यहाँ से हमने कॉमन फाइंड आउट किया, तो मेरे पास जो जो चीज़ें कॉमन आ रही थी वो मैंने मेंशन करी हैं। यहाँ ये ओपन होके हो गया x-5 x+5 डिवाइडेड में हो गया x-1 x+1 मल्टीप्लाई साइन। अब आपने इसमें फॉर्मूला लगा मिडिल टर्म ब्रेक किया, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 8x², 8 और 1 का फैक्टर बना, और नीचे हो जाएगा मेरे पास -5x²। सो बेसिकली इसमें फैक्टर किसका बना, 5 और 1 का फैक्टर बना। यहाँ पे मैंने माइनस होके मिल के क्या हो जाएगा, कंबाइन करके प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 8 + 1 गिव्स यू 9, प्लस माइनस 5 - 1 गिव्स यू 4, और पॉजिटिव का 4 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास x-9 जो कॉमन आ रहा था दोनों, उसमें हमने एक दफ़ा लिखा, x+1 को हमने एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, डिवाइड में मेरे पास x-8 हो गया, और x-9 को मैंने एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, मल्टीप्लाई साइन जो चीज़ एज इट इज़ लिख दी है। यहाँ पे हमने कॉमन निकाल दिया उसी स्टेप में। अब आप देखो x-9 से कैंसिल आउट हो गया, x+1 से कैंसिल आउट हो गया। अभी तक यहाँ पे यही चीज़ें सेम थी जो हमने कैंसिल आउट करी। मल्टीप्लाई साइन ये जो हमने कॉमन निकाला था, हमने इसको नेक्स्ट स्टेप में एक एक ब्रैकेट में जब क्लोज किया, तो अब हम देख सकते हैं कि x-8 से कैंसिल हुआ, x+5 से कैंसिल हुआ, x-1 से कैंसिल हो गया। क्लियर हो गई बात। x-5 और x-1 हमारे पास रिमेनिंग आंसर हो गया, जो कि हमने आगे लिख दिया। इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे पास है 1/1/2x - 3y - x+y डिवाइडेड बाई 4x² - 9y²। इसमें हमने थोड़ा सा क्या किया है, थोड़ी सी रफ वर्किंग कर ली, तो इसलिए हमारे पास एक शॉर्ट सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। 4x² - 9y² दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, नेगेटिव साइन है, तो a² - b² का इस पर फार्मूला ओपन हुआ, और ये बन गया 2x + 3y 2x - 3y। तो इन प्लेस ऑफ 4x² - 9y² आई हैव यूज दिस थिंग। क्लियर हो गई बात। बाकी चीज़ें एज इट इज़ आ गई। नेगेटिव साइन आ गया, देखिए मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम कुछ नहीं कर रहे थे, यहाँ नेगेटिव साइन आया है। इस नेगेटिव साइन की वजह से हम इसमें क्या लेंगे, हम इसमें लेंगे एलसीएम लेने के लिए। अब आप देखो जो चीज़ें सेम है, यानी कि 2x - 3y 2x - 3y दोनों में आ रहा था, ठीक है, बट यहाँ पे मेरे पास 2x + 3y इस वाली टर्म में आ रहा है, इस वाले फ्रैक्शन में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 2x + 3y से, इस पूरी टर्म को जब मल्टीप्लाई कराया तो 1 × 2x + 3y गिव्स यू 2x + 3y, माइनस साइन की वजह से हमने जो नेक्स्ट वाली टर्म है उसको ब्रैकेट यूज़ करा, और जो टोटल एलसीएम मेरे पास आ गया वो हो गया 2x + 3y 2x - 3y। कीप दिस इन योर माइंड, हम कभी भी डबल टाइम नहीं लिखते, ठीक है। एलसीएम हमेशा एक दफ़ा लिखा जाता है ना, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद हमने वही काम किया है। अब आप देखो इसको हमने फिर अगेन रफ वर्क में सॉल्व कर लिया। 2x + 3y -x - y गिव्स यू x + 2y। x + 2y को मैंने यहाँ पे मेंशन करा, और 2x + 3y 2x - 3y मैंने किस तरीके से ओपन करा था, 4x² - 9y² को ओपन करके आया था, तो हमने दोबारा क्लोज कर दिया, एंड दिस इज़ द आंसर। चलें जी, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। पॉजिटिव साइन है। अब आप देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों डिफरेंट है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ये पूरी टर्म यानी कि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी y × x + y, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और ये 1 × x × x - y, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कौन से वाले फ्रैक्शन से, सेकंड वाले फ्रैक्शन से। क्लियर हो गई बात। हमने मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव साइन था, ओपन किया। अच्छा एक चीज़ और, x - y x + y गिव्स यू, ये आ रहा हमारे पास x - y x + y गिव्स यू व्हाट, x² - y²। इसको मैंने रफ वर्क में सॉल्व कर लिया था। सेकेंड थिंग, x y को मैंने एक जगह लिख दिया, x - y x + y, और जो ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हमने मल्टीप्लाई करा था उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया विद द पॉजिटिव साइन। ओपन करेंगे xy + y² + x² - xy। क्लियर हो गई बात। नीचे हमने ऑलरेडी फार्मूला क्लोज कर दिया है, जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही थी उसको कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास आ गया x² + y² डिवाइड में आया xy × x² - y², एंड दिस इज़ द आंसर बिकॉज वी कैन नॉट सिम्प्लीफाई फर्दर। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलें जी, आपके पास अगेन पॉजिटिव साइन है क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें हमें अगेन क्या करना होगा, एलसीएम सेम करना होगा, इस जस्ट और इन अनदर वर्ड वी कैन से डिनोमिनेटर सेम करना होगा। अब एक चीज़ चेक करिए, ये है मेरे पास 2x - 1 और ये मेरे पास है 1 - 2x। अगर मैं इस पे से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लूँगी तो ये मेरे पास ये दोनों सेम हो जाएंगे। ये देखिए ये काम कर रहा है, हमने नेगेटिव साइन जब कॉमन निकाला तो ये हो गया मेरे पास 2x - 1।
ठीक है। ये जो नेगेटिव साइन मैंने यहाँ से कॉमन निकालूंगी, ये जाके कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस पॉजिटिव साइन के साथ, तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। ये हो गया 5x + 5 एज इट इज़ 3 × 2x - 1, नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन इससे मल्टीप्लाई हो गया, नेगेटिव बन गया 6 - 2x, डिवाइड में आ गया 2 × 2x - 1। आगे बढ़ें, ये दोनों देखिए, इन दोनों टर्म्स में, दोनों फ्रैक्शंस में 2x - 1 आ रहा है, इट मीन्स 2x - 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना। इस वाली टर्म में मेरे पास क्या नहीं है, 2 नहीं है इनके, बिकॉज 2 3 से क्या हो जाएगा 6। तो इस वाली टर्म को मैं पूरे को मल्टीप्लाई कराऊंगी 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कराऊंगी किससे, 3 से। यहाँ पे मैंने यही काम किया, नेगेटिव साइन के साथ 3 मल्टीप्लाई करा दिया विद द होल ब्रैकेट, ये 2 मल्टीप्लाई करा दिया विद द होल ब्रैकेट। ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ देखिए 8 कॉमन निकाला, 8 2 = 16, 8 1 = 8, 2x - 1 2x - 1 कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास 2 4 = 8, 2 3 = 6 कैंसिल करके हमारे पास जो लास्ट रिमेनिंग बचा है वो क्या बचा है, 4/3। क्लियर हो गई बात। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन 11 में हमारे पास दोनों नेगेटिव साइन है, कंबाइन ऑपरेशन आ गया। कंबाइन ऑपरेशन में दोनों नेगेटिव साइन है, जहाँ जहाँ जो चीज़ें अप्लाई होंगी हम वो करेंगे। अब ये देखें, यहाँ पे हमने फिर देखा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है दोनों, और नेगेटिव साइन है तो हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला अप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर आया 2a + 3 और 2a - 3। सिंपली सबसे पहले ये लिखने के बाद इसको ओपन कर दिया। अब आप देखो क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ नहीं है। जो टोटल एलसीएम बनेगा वो मेरे पास ये बनेगा 3 2a + 3 2a - 3। अब इसके अकॉर्डिंगली इस वाली टर्म में जो मिडिल टर्म है फ्रैक्शन की, उसमें 3 भी है और 2a + 3 भी है। ठीक है, क्या चीज़ नहीं है, 2a - 3। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करा देंगे 5 को। फर्स्ट टर्म में आते हैं, 2a - 3 है, ये पूरी चीज़ नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 3 × 2a + 3 से। यही काम किया है, 3 × 2a + 3 से मल्टीप्लाई कराया, ये 2a एज इट इज़ आ गया, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। -5 × 2a - 3, -4 × 3a + 2, ये एज इट इज़ आ गया, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी तमाम चीज़ें मौजूद थी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास टोटल आ गया। क्लियर हो गई बात। ओपन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओपन करा, इस वाले स्टेप को इसमें ओपन करा, यानी कि 3 2 = 6, 3 3 = 9 और 2a एज इट इज़। यहाँ से ओपन कर लिया, 5 2 = 10a, माइनस माइनस प्लस, 5 3 = 15, माइनस 4 3 = 12a, माइनस प्लस माइनस 4 2 = 8। इसको सॉल्व कर लिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10 + 12 गिव्स यू व्हाट, 22a, प्लस माइनस माइनस 15 - 8 गिव्स यू 7। ठीक है, ये जो चीज़ हमने ओपन करी थी इसको दोबारा क्लोज कर दिया, और ये 3 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई करा है, 6 2 = 12, a × a is a², 9 2 = 18, a एज इट इज़, माइनस 22 a किसका आ गया था, हमने इसको सॉल्व करा था, और +7। अब इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे, मेरे पास आ जाएगा -4a + 7, 12a² एज इट इज़ आ गया, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ कॉपी करके दिस इज़ द आंसर। नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 12 आपका होमवर्क है। अब अभी हम देख लेते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे ना, उसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई है, और ब्रैकेट में मेरे पास क्या चीज़ आ रही है, पॉजिटिव साइन आ रही है। बॉडमास रूल याद है आपको, बॉडमास रूल क्या होता था, बॉडमास रूल में हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते थे। ठीक है, बट यहाँ हम ब्रैकेट के साथ साथ बाकी चीज़ें भी सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखो कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a² - b² का, जो कि ओपन हो गया a + b × a - b। इसके ऊपर भी वही अप्लाई हो रहा है फार्मूला, और इसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया 1 + b 1 - b, 1 + q एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई पे 1 + q 1 - q, यहाँ से मैंने p कॉमन निकाला, मेरे पास आ गया 1 + p। मल्टीप्लाई साइन एज इट इज़, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इन दोनों को सेम करने के लिए इससे मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 1 - p। तो जब मैंने मल्टीप्लाई करा है तो ये हो गया 1 - p, और ये प्लस p एज इट इज़, प्लस माइनस कैंसिल होके डिनोमिनेटर में आ गया 1 - p एज इट इज़। जो चीज़ें जहाँ जहाँ कैंसिल हो रही थी, ये 1 + p 1 + p से कैंसिल करा, ये 1 + q 1 + q से कैंसिल करा। यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचा, 1 - p डिवाइड में 1, मल्टीप्लाई बाय 1 - q डिवाइडेड बाय p, मल्टीप्लाई बाय, ये चीज़ कैंसिल होके मेरे पास बच गया 1/1 - p। ये 1 - p से कैंसिल हुआ, जो टोटल आंसर मेरे पास हो गया 1 - q डिवाइडेड बाय p। ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12 में आप सिंपली क्या करोगे, नेगेटिव साइन है, ठीक है, ये मेरे पास 5 है, ये मेरे पास 2 है, ये दोनों टर्म्स को बेसिकली सबसे पहले आप मिडिल टर्म ब्रेक करोगे। मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद आप चेक करोगे क्या क्या चीज़ें कॉमन है। जो चीज़ें कॉमन होंगी उसको मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, जो चीज़ अनकॉमन होगी वो इसके साथ, जो इसका आंसर आएगा
यानी कि जो स्टैटिक आंसर आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और जो ये इस सर्कल का आंसर आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अनकॉमन चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी, कॉमन वाली चीज़ मल्टीप्लाई नहीं होगी। क्लियर हो गई? और इन केस कोई भी चीज़ कॉमन ही नहीं हुई तो पूरे दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। चलें जी, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास रिमेनिंग था जो कि हमने नहीं किया था स्टार्टिंग में। आंसर दीज विदाउट कैलकुलेशंस, क्या कैलकुलेशन किए बगैर आपने इसको आंसर देने। अब आप देखिए, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट एल्जेब्रिक फ्रैक्शन एंड एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 8 गिव्स यू 1। आपको याद है जब हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ करी थी तो उसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ा था। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या था? लेट सपोज अगर मेरे पास ए है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या था? 1/a। तो ये बेसिकली कैंसिल आउट करके मेरे पास क्या देता था? 1। सिमिलर वे में पार्ट 1 में अगर ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 8, उन्होंने बोला है कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ, तो ये आंसर मुझे 1 देगा। तो बेसिकली एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 8, 1/1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 8 जब मल्टीप्लाई कराएंगे, ये देखिए ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल होकर मेरे पास 1 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच एल्जेब्रिक फ्रैक्शन डिवाइड बाय दिस गिव्स 1। अगेन कौन सा एल्जेब्रिक फ्रैक्शन इसके साथ डिवाइड करेंगे? इसी का रेसिप्रोकल। इसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, डिवाइड बेसिकली बोला है तो डिवाइड हम इसी से करेंगे, सेम से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिवाइड हम सेम से करेंगे बिकॉज जब डिवाइड किस में चेंज होगा? मल्टीप्लाई में चेंज होगा। नीचे जाके जब ये चेंज हुआ मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में चेंज हुआ। जो सेकंड फ्रैक्शन था वो रेसिप्रोकल हो गया। अब देखो ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई, ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई, 1 आ गया। सो बेसिकली डिवाइड करने के लिए क्या यूज़ होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेम थिंग। सम ऑफ व्हाट एल्जेब्रिक फ्रैक्शन एंड दिस इज़ m प्लस n डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब उन्होंने बोला है किसका सम, यानी कि ऐसा क्या चीज़ होगी? सम का मतलब एडिशन किसके साथ करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आंसर आए वो ये चीज़ आए। सो बेसिकली आप इसमें देख सकते हो m ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर गिवन है, तो सिंपल आप कैसे प्लस करोगे? n ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के साथ इसको ऐड कर दोगे, ठीक है। सो टोटल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। प्रोडक्ट क्या होगा? अगर एक एल्जेब्रिक फ्रैक्शन है और उसका ही रेसिप्रोकल है, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 1 होगा। तो बेसिकली लास्ट फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। विदाउट यूजिंग कैलकुलेशन बोला था, बट ये जो 2 कैलकुलेशन हैं वो सिर्फ इसीलिए परफॉर्म की गई हैं ताकि आपको समझ आ सके। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू मे आस्क योर टीचर। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।